I've been told so many times from people that I'm funny, but I don't do that intentionally. You know what just happened? I started recording और मैंने पता है क्या बोला? Hi guys, welcome back to PCOS. Anyways, hi guys, welcome back to Prefit, and today's video is fully dedicated to PCOS. How I realized कि मेरी बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, and how I क्या हो रहा है मुझे? I have a lot to say and I'm just fumbling. Anyways, how I got diagnosed with it, how I reversed it, I'm still doing that, and how actually living with PCOS looked like for me from the past 2 years. So it will gonna be a long video. बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, so please bear with me. बहुत लंबी इतना भी नहीं कि तुम्हारा 1 घंटा ले लूँगी. 10-15 मिनट तो दे दो यार अपनी लाइफ के. इतना टाइम तो मैं डिजर्व करती ही हूँ. And if you are a guy watching this, this might not be a video for you. But if you have a partner, sister, or maybe a friend dealing with PCOS, you are very much welcome to stay. Again, I fumbled. You're very much welcome to stay. You might know her better after this. So let's get right into it. So, what is PCOS? PCOS stands for Polycystic Ovary Syndrome, and कुछ लोग इसको PCOD भी बोलते हैं, and इसका full form होता है Polycystic Ovary Disease. So there is no difference as such. एक को सिंड्रोम बोलते हैं, एक को डिजीज़ बोलते हैं, बट सिर्फ डिफरेंस वर्ड का ही है. एंड आई नो वो सुनने में कितना डरावना लगता है, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज़, बट एक्चुअली में ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है. एंड एज सच देर इज़ नो क्योर और परमानेंट सोल्यूशन टू दिस, बट this is definitely, in inverted commas, is manageable through the lifestyle changes, which are the diet and the exercise, जो कि हम इस वीडियो के थोड़े सेकेंड हाफ में वीडियो के अगले पड़ाव में I will explain it to you. And in some cases, doctors do give the birth control and the metformin tablet to get the periods if you are irregular with it. So metformin जो tablet होती है या जो birth controls होते हैं, they help you to get the periods, but they are not the permanent solution. And अगर बहुत ज़्यादा worst हो चुकी है situation, then you can go on that medications. But what I would suggest कि please do not take it, बिकॉज इस तरीके से अगर फ्लो लाने की कोशिश करोगे तो नेचुरली बॉडी उस चीज़ को अडाप्ट करने के लिए और डिले होती जाएगी. सो द पॉइंट इज, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ एंड यू जस्ट गॉट डायग्नोस्ड विद द PCOS, और माइट भी तुम यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे कि क्या है, डोंट गेट पैनिक जस्ट बिकॉज आई सेड देयर इज़ नो सोल्यूशन और परमानेंट क्योर टू दैट. This video is not to scare you, this video is there to help you. Just be with me till the end of the video. I will explain each and everything from the symptoms to solutions. जो भी कुछ मैंने फेस किया है, मेरे लिए वर्क किया है, I'm definitely gonna share it with you, the products, the medication. And I don't want to scare you. This video is definitely to help you. कुछ भी बक दिया मैंने, मैं बिल्कुल नहीं काटूंगी ये वीडियो. मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं वही डालूंगी. काटने में इतनी मेहनत मैं क्यों करूँ, सुनते जाओ. सो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट पेड नहीं प्रमोट होगा. आई हैव यूज सो मेनी प्रोडक्ट्स एज वेल अपनी इस जर्नी में. सो लेट्स गेट इन टू वट एक्चुअली हैपन टू मी जब मुझे PCOS हुआ था. PCOS 2 साल पहले हुआ था. And I was with a guy at that point of time. So missing on to the periods could be another reason as well. So we were figuring it out, and I got to know after the ultrasound कि ये PCOS है. And that guy, who was a bitch, did not even bother to go to doctor with me. And उस टाइम पे I was alone at home. मेरे सिर्फ दादाजी थे और सब घर वाले गए हुए थे पंजाब. So in the first time ever in my life, I went to the hospital alone. मेरा पेन गिर गया, एक सेकेंड. I went to the hospital alone and मैं बहुत रोई थी. जहाँ पे ये फ़ोन रिकॉर्ड हो रहा है इसके बगल में यहाँ पे बैठ के, बिकॉज मैं कभी हॉस्पिटल अकेले गई ही नहीं हूँ. That was such an emotional thing for me. I could have asked my friends or best friends to come with me, but I was like यार क्यों किसी को परेशान करना है ना. और मैं भाई, मेरे से सूसू नहीं कंट्रोल होता, और अल्ट्रासाउंड के लिए सॉरी आई जस्ट अब्यूज्ड को कितनी देर पानी पी के बैठा दिया. उसके बाद जब रिपोर्ट आई, फिर मैं गई गायनेकोलॉजिस्ट पे, एंड देन शी आस्क्ड आर यू इन a sort of physical connection with someone. I said yes, and then उसने टेस्ट वगैरह किया. then she asked कि आपको स्ट्रेस है क्या. मैंने बस ऐसे हंस दिया क्योंकि जिनको स्ट्रेस होता है वो बस हंसते ही हैं, जिनको नहीं होता है वो दूसरों को देते हैं स्ट्रेस. तो उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह किए. उस टाइम मुझे छोटे छोटे एक्ने आते थे,
अभी ये फोटो में देखो, ऐसे छोटे छोटे से नहीं होते, छोटे छोटे से। उससे पहले भी मुझे हुआ था पता है एक्ने और हेयर फॉल का, लॉकडाउन में जब मैं खाती थी मोमोज और एकदम फ्राइड चीज़ें, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू गेट दिस काइंड ऑफ एक्ने। जस्ट लुक एट माई फेस, हेयर फॉल बहुत तगड़ा। उस टाइम पे तो मैंने मेडिकेशंस लिया था, मतलब वो ठीक हो गया था, बट ये वाला एक्ने वाला जब हुआ, सो ये अभी भी होता है, लाइक बहुत रेयर होता है। एंड आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट रूट कॉज क्या है, आई जस्ट नेम इट कि यार PCOS है तो होता ही है, ठीक है। तो ये वाइट वाले जब एक्ने मुझे हो रहे थे, मैं दिल्ली की बेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट पे गई थी। एंड यू नो व्हाट शी सेड इन द सेकंड सिटिंग, PCOS है तो एक्ने तो होगा ही। एंड आई गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड. The second visit of the gynecologist, I forgot to take my prescription with me, and that she just yelled at me कि आप अपना प्रिस्क्रिप्शन क्यों नहीं लेके आए हो, ये हो वो हो। एंड इन द फर्स्ट सेटिंग शी आस्क्ड मी कि आपको स्ट्रेस तो नहीं है। हाउ कैन यू येल एट मी? एंड आई वाज लाइक यार कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है, गायनेकोलॉजिस्ट चिल्ला रही है, डर्माटोलॉजिस्ट कह रही है कि एक्ने है तो एक्ने हो गया। आई वाज लाइक कि नो विच आई एम नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन दीज पीपल। मैंने उस टाइम पे एक डाइटिशियन हायर करी थी, डाइट हेल्प करी थी, बट द पॉइंट वॉज ऑल द टाइम यार अब तो डाइट ठीक कर ली, अब तो डाइट ठीक कर ली, पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे, पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे। बट एक्चुअली इट डजंट वर्क लाइक दैट. You have to be patient. So I invested my money into the gym and I joined a gym brand वाला जहाँ पे योगा क्लासेस भी होती हैं और मैंने पर्सनल ट्रेनिंग ली, ठीक है। दैट इज़ माई जर्नी विद PCOS. अभी थोड़ा सा इसके सिम्टम्स पे जाएंगे. So the major symptom of PCOS and PCOD is irregular periods, and कुछ लड़कियों को बहुत ही कम फ्लो होता है, and some ladies even they have a very long, for like months they are dealing with it. And मतलब पहली बार अगर हो रहा है आई कैन अंडरस्टैंड इट, बट आई हैव बीन फ्रेंड्स विद गर्ल्स एंड दे वर लाइक दे टेक इट सो लाइटली कि यार कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, हेलो, नो नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. You have to take your body seriously, and I hate people who come and complain about the things and they do not take action for that. Anyways, another symptom is of course the acne, hair fall, weight gain, infertility, and so on. You know what is the irony? जितने भी symptoms हैं they all are related to the beauty standards. स्किन अच्छी होनी चाहिए, बाल अच्छे दिखने चाहिए, एक आइडियल बॉडी होनी चाहिए, एक्ने नहीं होना चाहिए, ये बोलो. फिर मैंने फंबल कर दिया, नहीं काटूंगी, जो बोल रही हूँ यही बोलूँगी अगेन. एंड सिंस आर चाइल्डहुड, स्पेशली बीइंग अ गर्ल, वी आर फोर्स्ड टू लुक अ सर्टन वे. सारी की सारी कटरीना कैफी निकलनी चाहिए, एकदम बार्बी डॉल. एक्ने, हेयर फॉल, वेट गेन, सब कुछ ब्यूटी स्टैंडर्ड पे है. और एक बीमारी हमें नहीं दी गई है जो कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ही इफेक्ट करती है. एंड द सेम पीपल हु टॉन्ट अस सिंस द चाइल्डहुड टू लुक अ सर्टन वे विदाउट नोइंग कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, इन द एडल्टहुड दे ऑल्सो टॉन्ट यू. अरे यार मुंह पे इतने दाने हो रहे, मेरे बगल में शीशा है, ये देखो मुझे दिखता है भाई, इतना बड़ा शीशा मैंने लगाया, मुझे दिखता है मेरे एक्ने हो रहे हैं, मुझे दिखता है मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं. यू आर नॉट सपोज टू रिमाइंड मी एवरी फकिंग टाइम. और कभी मेरा मुंह साफ हो तो कोई बोलेगा नहीं कि हाँ आज तो स्किन अच्छी लग रही है. वैसे आज कैसी लग रही है मेरी स्किन, मेकअप लगा रखा है, बट एनीवेज I can't be serious in serious situation. So these are the major symptoms. Okay. Moving on to the cause. Actually में होता क्यों है PCOS? And also एक चीज़ और मुझे बोलनी है. If you keep on ignoring the symptoms like hair fall, weight gain, acne, irregular periods, कोई नहीं अगले महीने आ जाएंगे, one day you might gonna deal with the infertility. I'm not saying it to scare you, but this is what actually happens. And I don't know who's the daddy, but I love kids. Like, I seriously love kids. So if you are a girl watching this, I'm not asking you to get married and have babies, but we all want that. ठीक है, अंदर से सबको पता है इस छोटे से दिल में किसको क्या चाहिए. So if you really want that, and if you want to be a good mom, just take care of yourself. Do not ignore जो छोटे छोटे symptoms होते हैं, because वो एक दिन जाके बड़ी problem बन जाती है. Not in PCOS, अब हमारी लाइफ में भी. So moving on to the next part, which is कि PCOS होता क्यों है. पहले थोड़ा सा scientifically समझाऊंगी.
So, there are two major causes of PCOS. The very first is that PCOS is heavily influenced by androgens. अब androgens क्या होते हैं? They are male hormones like testosterone. So वो women's की body में होते हैं, but जब वो एक certain level से बढ़ जाते हैं तो PCOS की condition आती है. And androgens जो है वो basic features को describe करता है, like the body hair or the muscle mass. And मैंने एक reel बनाई थी Instagram पे जो कि उसमें मैंने ये बोला था कि आई गेट मसल faster than other girls. So I compared myself to girls, not the guys. But some male fragile ego got triggered and he commented कि मसल कहाँ है, दिख नहीं रहे. So मैंने उस कमेंट को उठा के एक और रील बनाई थी and I did that intentionally because not just because I got triggered, because I know that bitch कि मैं लड़कों को bitch क्यों बोलती हूँ, anyways they are. So मेरे को था कि इस हेट कमेंट से मैं आगे लव वाले कमेंट रिसीव करूँगी. मैंने वो हेट कमेंट उठाया, मैंने अपनी PCOS की जर्नी बताई. ब्रो जस्ट लुक एट द स्क्रीनशॉट्स. फुल ऑन लव आई गॉट इन माई कॉमेंट सेक्शन. थोड़ी बहुत बकचोदी भी हुई थी एंड रैंडम पीपल दे आर जस्ट कमिंग एंड सेइंग वाओ सच अ नाइस बॉडी, यू हैव मसल्स, अरे इतना मसल ही आ गया, ये वो. वाज लाइक कि यार, एंड यू नो दिस हैपन्स अ लॉट ऑफ टाइम. आई हैव सीन रीज़न मैं इतना अब कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ या मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ, मैं अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर पाती हूँ ऐसे खुले सोशल मीडिया पे, बिकॉज रैंडम पीपल स्पेशली ऑन यूट्यूब व्हेन आई गॉट कमेंट्स. यार इतना बड़ा बड़ा तुम लोग लिख के जाते हो, कोई एक बंदा भी कमेंट करता है ना, मेरे अंदर का मोटिवेशन बढ़ जाता है. लाइक डिसिप्लिन आई डू हैव, मेरा जो लाइफ स्टाइल है ठीक है, बट मोटिवेशन अप एंड डाउन ग्राफ इस तरीके से जाता रहता है. बट इफ़ यू आर गेटिंग अप्रिसिएशन एंड पीपल आर रिलेटिंग देयर लाइफ टू यू ना, वो वाली जो खुशी होती है ना, दैट इज़ मोर देन मनी और एनी सुपरफिशियल और मटीरियलिस्टिक थिंग, आई एम टेलिंग यू. सो वो रील में बहुत ज़्यादा बकचोदी हुई है. इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट follow me on Instagram, it's same as prefit_6 and watch that reel. Okay, moving ahead, जो androgens होता है they are like the male hormone. तो वो जब एक certain level से बढ़ जाता है PCOS की कंडीशन आती है. एंड द अनदर कॉज इज़ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या बला है? वो एक कंडीशन होती है बॉडी में जब हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो वर्स्ट हो जाता है एंड इट मेजरली इम्पैक्ट्स द इम्यून सिस्टम एंड द इंसुलिन रेजिस्टेंस. सो अगर क्रॉनिक नहीं काटूंगी, ऐसे ही बोलूँगी. सो अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को हील करना है, यू हैव टू वर्क ऑन फ्यू थिंग्स. ऑफ कोर्स वेट मैनेजमेंट होना चाहिए, डाइट क्लीन करनी है, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, अल्कोहल कंजम्पशन अगर है तो छोड़ दो. आई यूज टू ड्रिंक, like I got a little bit addicted to vodka in lockdown. I did it for like few months and then after that lockdown happened और सैनिटाइज़र ही सैनिटाइज़र हर जगह पे इसकी आँख. Please bear with me, I don't want to cut. It takes a lot of time to edit the videos. I'm gonna put it raw. So and I puked आफ्टर ड्रिंकिंग वोडका एंड मेरे को अभी भी उसका वो स्मेल याद रहता है. तो उसके बाद इतना सैनिटाइज़र सूंगा, मैं लाइक कि मैं वोडका नहीं पीऊँगी, नहीं. एंड इफ़ यू स्मोक प्लीज़ स्टॉप doing that. I did that for like 4 months and then I told my mom that I'm getting addicted to it and she did some prayer to the God and I left it. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए स्लीप साइकिल जो है उसको ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सोते हुए एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है मेलाटोनिन, जो कि नेचुरली हमारे इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है और इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करता है. एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डेटिंग दैट बिच, मेरी रातों की नींद उड़ी हुई थी और अब मैं लोगों की नींद उड़ाती हूँ. हाँ, सो द कॉजेज इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग कि मेल हार्मोन्स जो है वो फीमेल बॉडी में बढ़ जाते हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिसके लिए अगर सुट्टा या दारू पीते हो प्लीज़ छोड़ दो मेरी प्यारी बहनों, प्लीज़ छोड़ दो. खाना, डाइट, एक्सरसाइज and weight management. Okay, now coming on to the diet. You don't have to diet. Sounds funny, right? कुछ छोड़ना नहीं है. So डाइट नहीं करनी है, कार्ब्स कम करने हैं, भूखा नहीं मरना है, कार्ब्स कम करने हैं, उसकी जगह प्रोटीन ऐड करना है, हेल्दी फैट्स ऐड करना है. एंड बाय प्रोटीन आई डू नॉट मीन हेयर द प्रोटीन सप्लीमेंट्स. हाँ, मैं लेती हूँ सप्लीमेंट बिकॉज मैं जिम जाती हूँ एंड आई एम प्योर वेजिटेरियन. आई डू नॉट इवन ईट एग्स. मैं सिर्फ नॉनवेज के नाम पे लोगों का दिमाग खाती हूँ. बट you can start with
पनीर, सोया, दाल चावल, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। ऑफ कोर्स सारे अमीनो एसिड्स तुम्हें सब में नहीं मिलेंगे, बट स्टार्ट स्मॉल इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड थिंकिंग कि यार नहीं यार प्रोटीन नहीं खा सकते, उससे किडनी ये होता है वो होता है। किडनी खराब तो करो पहले। किसकी हुई है किडनी खराब भाई? पता नहीं कौन सी कब किसी ने रिपोर्ट बना दी थी, जब इंडिया में पता नहीं अच्छे तरीके का प्रोटीन नहीं बनता था, कोई एक आधा बंदा इफेक्ट हो गया होगा। अभी कोई खा के अपनी किडनी खराब करो तो मैं मानूँ, कुछ नहीं होता है। सो ट्राई टू ऐड मोर प्रोटीन इन एवरी मील। ब्रेकफास्ट में भी कुछ प्रोटीन का होना चाहिए, लंच में भी कुछ प्रोटीन का होना चाहिए, डिनर में भी कुछ प्रोटीन का होना चाहिए। एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन गो फॉर द सप्लीमेंट्स। कैसे चूज़ करना है मेरे पेज पे है एक वीडियो, शॉर्ट्स में भी है यूट्यूब पे और रील में भी है, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच इट। एंड अनदर थिंग इज एक्सरसाइज। सी देर इज़ नो सच एक्सरसाइज, देर इज़ नो सच योगा रूटीन दैट कैन फिक्स PCOS, देर इज़ नो सच प्रोटीन पाउडर दैट आर स्पेशली फॉर PCOS और फॉर वुमेन। अगर मैं कहीं पे कुछ प्रमोट करते दिख जाओ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी फ़ोन की EMI इन सब चीज़ों से ही जाती है। बट व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से हियर कि कोई भी चीज़ इसको फिक्स नहीं कर सकती है। एज आई सेड इनिशियली इन द वीडियो, इसका कोई ये सोल्यूशन नहीं है। इफ़ यू क्लिक ऑन टू दिस वीडियो जस्ट टू से कि यार इस वीडियो से मुझे कुछ ना कुछ ऐसा पता चल जाएगा जिससे मेरा PCOS यू रिवर्स हो जाएगा। इफ़ यू आर समवन दैट गॉट डायग्नोस्ड विद इट, आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन द थिंग्स तरीके से कि आपको वो समझ आया होगा। गेटिंग बैक टू द एक्सरसाइज में बोलना चालू करती हूँ तो मैं कर ही देती हूँ। सो बेसिकली एक्सरसाइज में क्या करना है, सिर्फ कार्डियो नहीं करना है, हाई इंटेंसिटी कार्डियो नहीं करना है, बिकॉज हम ज़्यादा अगर उछलते कूदते हैं बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वी एंड अप ईटिंग मोर कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा नहीं खाने हैं, बैलेंस्ड रखना है डाइट को। मसल बिल्डिंग करनी है, 3 दिन हफ्ते में जिम जाना ही जाना है, और किसी का वर्कआउट रूटीन नहीं फॉलो करना है, मेरा करना है। What I'm trying to say do watch my videos guys. What I'm trying to say here कि अगर कोई तुम्हें बना बनाया ऐसे दे दे कि ये करो ये करो ये करो, बट तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन टाइम होता है पूरे हफ्ते में, उसने तुम्हें दे दिया 6 दिन का वर्कआउट प्लान, हाउ विल गोना डू इट? सो थोड़ा सा कस्टमाइजेशन रहता है, अपने स्केड्यूल के हिसाब से और अपने टाइम के हिसाब से वर्कआउट करना चाहिए। सो इफ़ यू वांट आई कैन हेल्प यू विद दैट। पैसे नहीं लूँगी मैं, इंस्टा पे फॉलो करना है या नहीं करना है वो आपकी चॉइस है, बट दैट इज़ द ओनली वे वी कैन कम्युनिकेट। सो अगेन इट इज़ सेम एज prefit_6. इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग द डाइट, द वर्कआउट और रिलेटेड टू PCOS, यू कैन जस्ट DM me there. आई एम नॉट गोना चार्ज यू एनी मनी फॉर दैट। बेसिक सा वर्कआउट रूटीन इफ़ यू वांट मैं तुम्हें हफ्ते का बना के दे दूँगी तुम्हारे स्केड्यूल के हिसाब से। एक्चुअली मैंने अपने 2-3 फॉलोअर्स को दिया है। करीना, इफ़ यू आर वाचिंग दिस यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट यू। सो बेसिकली नाउ आई एम गोना गो बैक टू द थिंग कि कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। क्रैश कोर्स करोगे डाइट का, 3 महीने करोगे, फिर से वापस से वहीं पे जाओगे। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये एक लाइफस्टाइल का पार्ट है, ये एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का पार्ट है। हिंदी सही बोला मैंने? हाँ। तो रोज़ लाइफस्टाइल को ठीक करोगे तो सब ठीक रहेगा। एंड अनदर थिंग दैट आई डील विद PCOS इज स्ट्रेस। अब मुझे किस बात का स्ट्रेस है, लाइक आई जस्ट सेड दिस टू माई ब्रदर वंस ऑन कॉल। उसमें मैंने छोटे छोटे एक्ने होते थे, 2 साल पहले दिवाली पे वो आया था, मेरा भाई एक दुबई में रहता है, एंड ही वाज लाइक दे वर आस्किंग देखो स्ट्रेस नहीं देखो एक्ने क्यों हो रहे हैं, एक्ने क्यों हो रहे हैं। तो ऐसे सब बैठे थे, मैंने बोल दिया बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। एंड उसका मेल ही गुड, स्ट्रेस किस बात का स्ट्रेस, क्या लेना तुझे, ये ले मेरा कार्ड है। आई वाज लाइक स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट द मनी, बहुत सारी चीज़ें होती है, बंदा सोचता रहता है। इट्स नॉट जस्ट अ स्ट्रेस, द नेगेटिव स्ट्रेस। लाइक मेरी फ्रेंड की एक मम्मा है एंड शी वॉज डीलिंग विद समथिंग विद अ जॉ, लाइक रैंडमली उनके जॉ में पेन आने लग गया, एंड आंटी बालकनी में खड़े थे एंड आई आस्क्ड हर कि कैसे हुआ, क्या हुआ, एंड देन शी सेड वन ऑफ द रीज़न इज़ द स्ट्रेस। She smiled at me, I smiled at her, and we both understood कि क्या स्ट्रेस में हम लोग फील करते हैं। सो यू कैन नॉट मेक समवन अंडरस्टैंड कि यार मुझे स्ट्रेस क्यों हो रहा है। आई थिंक हर कोई अपने लेवल पे उस चीज़ को फील करता है। सो स्ट्रेस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है ऑफ कोर्स, बट you can just try to manage it. That's all what I can say. Now I'm gonna mention few products that actually worked for me for hair fall control के लिए एक सीरम आता है Bontress Pro. Here is the picture that was suggested by the dermatologist. 1.5 महीने के यूज़ के बाद मुझे रिज़ल्ट दिखा था।
उससे हेयर फॉल कंट्रोल होता है। बट अगर हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा और तुम्हें ग्रोथ चाहिए सिर्फ, तो उसके लिए यू कैन यूज़ दिस वन, द विश केयर वन. नाउ कमिंग ऑन टू द एक्ने, इफ़ द सिचुएशन इज़ वर्स्ट, लाइक रेडनेस बहुत ज़्यादा है या ब्लड आ रहा है, इन दैट सिचुएशन आई वुड सजेस्ट कि डॉक्टर पे जाओ. बट अगर छोटा मोटा एक आधा एक्ने निकल आता है, उसके लिए एक आती है एडाफिलिन जेल, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, आई एम अटैचिंग द फोटो है. और अगर मेरे जैसा ऐसा छोटा छोटा वाला एक्ने आता है, इस चीज़ के लिए मैंने अपनी एक रेमेडी आई स्टार्टेड यूजिंग इट. मेरे लिए वर्क करता है. चंदन पाउडर आता है बायो ऑर्गेनिक का, थोड़ा सा केसर उसमें मिला के, लाइक बेसिकली वो ठंडा कर देता है, सो मेरे बैठ जाते हैं एक्ने उससे. एंड अनदर थिंग, इफ़ यू आर डीलिंग विद द डार्क पैचेस और अनइवन स्किन टोन, आई हैव यूज्ड 2 creams. द वेरी फर्स्ट इज़ दिस वन, Mela, I don't remember the name, you can just see here. And another one is this one, VLCC का ग्लो प्रो समथिंग. सो बेसिकली दोनों में ग्लूटाथायोन है एंड कोजिक एसिड है. दे वर्क फॉर द ब्राइटनेस. काले से गोरे नहीं हो जाओगे, जस्ट इवन टोन या फिर ब्राइटनेस हो जाएगा. एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज्ड इन PCOS. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट टू से वन थिंग, you can invest all the money you can, but money cannot buy the fitness, money cannot buy the health. It can help you in the journey, but it cannot fix the thing. I am telling you, अभी तो मैं थोड़ा सा जॉब छोड़ रखी है तो मैं फटी में जीती हूँ, बट आई हैड मनी. जब मुझे PCOS हुआ था तो मेरे पास गायनाक को देने के भी पैसे थे, डर्माटोलॉजिस्ट भी मैंने हायर करा, मैंने डाइटिशियन भी हायर करा, मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी ले पाई. बट एक्चुअली मैं वो सब चीज़ें वर्क नहीं करी उस टाइम पे. एक्चुअली मुझे चीज़ वर्क करी वो थी मेरी विल पावर, कि अब मुझे इसको अपने आप फिक्स करना है. मैंने सारे डॉक्टर्स पे जाके देख लिया, मैंने डाइटिशियन पे जाके देख लिया, अब है इसकी यहाँ कुछ हो नहीं रहा है तो मैं ही करूँगी अब जो मुझे करना है. एंड अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं शायद फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने का नहीं सोचती, बट मैं जिम और योगा तब भी करती. मैं 8 साल से जिम कर रही हूँ. हाँ, मेरी 8 साल वाली बॉडी नहीं है, बिकॉज 6 साल तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कर क्या रही हूँ. आई यूज्ड टू डू रैंडम थिंग्स, और मैं नाइट शिफ्ट भी करती थी तो उतना अच्छे से डाइट और स्लीप सब कुछ नहीं हो पाता था. 2 साल से आई एम टेकिंग इट सीरियसली, बट ये साल हेल्थ का थोड़ा रहा है. आई स्टार्टेड द ईयर विद जॉन्डिस रिकवरी, एंड देन उसके बाद अपेंडिक्स का पेन हो गया था, फिर पता नहीं माड़ा कीड़ा पेन हो गया था, फिर अभी 1 महीना पहले मैं हॉस्पिटल में थी. एंड अगेन इट्स ऑल रिलेटेड टू द स्टमक. यू नो व्हाट एक्चुअली हैपन आफ्टर द जॉन्डिस, मेरे को ये अब ना टैटू करवा लेना चाहिए यहाँ पे मत्थे पे, पिंकी तेरा पेट ख़राब है. क्योंकि मैं इस बात को मानती नहीं हूँ. अब मैंने दिवाली पे ना भटूरे खा लिए, फिर मैंने समोसा खा लिया, फिर ना मैं बर्थडे के बाद थी हॉस्पिटल में. भैंस की आँख, हॉस्पिटल में थी मैं. मेरी विंडो से बाहर देयर वाज शादी हैपनिंग. ठीक है, लोग मुझसे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मैं बेड पे पड़ी हूँ, मैं फ़ोन चेक करूँ, मेरा फ़ोन देखने का मन ना करे. और जब बंदा बीमार होता ना, इतना हम्बल हो जाता ना, उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा सब मोह माया है, आई एम फाइटिंग हियर फॉर माई लाइफ. आई डोंट नो मुझे कल उठ के क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज आई लिटरली फेल्ट लाइक गई. इवन मेरे दादाजी ने भी बोला कि अब की बार तो लग रहा था तू गई. मैं कहा नहीं यार, इतने कर्म अच्छे नहीं हैं मेरे कि भगवान मुझे अभी बुला ले. एनीवेज गाइस, आई स्पीक अ लॉट एंड आई थिंक मैंने बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो बना ली है. सो टू द गर्ल्स वॉचिंग दिस, द वेरी फर्स्ट थिंग, PCOS क्या होता है, कैसे होता है, कैसे फिक्स करना है. डाइट से फिक्स करना है. डाइट करने के लिए भूखा नहीं मरना है. प्रोटीन, गुड फैट्स, लिमिटेड कार्ब्स एंड अ लॉट्स ऑफ वाटर. आई फॉरगॉट टू टेल दैट. एक्सरसाइज के लिए वॉच माई वीडियोज़ प्लीज़, और इंस्टा पे मैसेज करो, मैं तुम्हें तुम्हारे स्केड्यूल के हिसाब से बता दूंगी. एंड सम गर्ल कमेंटेड ऑन माई लास्ट शॉर्ट्स, आई रिप्लाई टू हर, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस यू कैन प्लीज़ DM मी ऑन इंस्टाग्राम. उन्होंने अपनी एक कंडीशन मुझे बताई थी PCOS से रिलेटेड. आई ट्राई टू फाइंड यू ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझे मिले नहीं. यू हैव अ ट्रैवलिंग पेज. एंड सो जाओ, अभी नहीं, अभी वीडियो देख लो, मतलब क्या, टाइम से सो जाओ. ठीक है. या वन मोर थिंग, सो जाओ से याद आया, भूल जाती हूँ मैं, इसलिए मैं लिख के रखती हूँ, पता है. ये देख रहे हो, ये मैं पूरा ऐसे लिखती हूँ इसमें. एक खाली वाला पेज आ गया, सॉरी, कि मेरे को वीडियोस में क्या बोलना है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ. बट बोलती मैं एंड में वही हूँ जो मुझे बोलना होता है, और करती भी मैं एंड में वही हूँ जो मुझे करना होता है. बट मैं क्या कह रही थी कि देर आर सम सॉर्ट ऑफ हर्बल टीज़. ठीक है, प्रोडक्ट्स में बोलना था मुझे. ये नामियाज़ की एक आती है, नामियाज़ विमेंस हेल्थ करके.
सो दैट इज़ वेरी गुड टू गेट द पीरियड्स इफ़ यू आर इरेगुलर विद इट. उसमें बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, बट ट्राई टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है. एंड अनदर वन इज़ द डंडमन टी, और यार मैं पीती हूँ, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम. मैं यहाँ फ़ोटो लगा देती हूँ. सो नामियास वुमेन हेल्थ टी एंड अनदर वन दैट आई टेक इट. बेसिकली दे आर हर्ब्स. सो इफ़ यू टेक इट, तुम्हारा थोड़ा सा जो है दिमाग शांत हो जाता है. इट एक्चुअली हैपन्स, आई एम टेलिंग यू. सो ट्राई टू ऐड दैट बेड टाइम पे, सोने से पहले. उसके बाद फ़ोन मत चलाना. मेरी वीडियो देखने के लिए चलाना, बस फ़ोन मत चलाना. So that's all about it. Take care of your diet, your sleep, water intake. And one more thing I want to say, ये disease specifically हमारे appearance पे आती है. So if you have a friend, colleague, even a partner who is making comments and making you feel less to any way, किसी भी सिचुएशन में वो तुम्हें लेस फील करा रहे हैं बिकॉज यू डोंट लुक अ सर्टन वे, या तुम ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में टिक टिक नहीं कर रहे हो, अगर वो बंदा तुम्हारे सामने है तो चढ़ दो. मुंह पे चाटा, एक और आ जाएगा, कोई बात नहीं, दोबारा चढ़ देंगे. अगर ऑनलाइन है, कोई कमेंट कर रहा है, या कमेंट तो मैं सोशल मीडिया से मैं तो नहीं बॉदर होती, बट इफ समवन दैट इज क्लोज टू यू एंड दे आर सेइंग ऑन टेक्स्ट, मे बी ऑन कॉल, मोटी हो गई है, ये हो गया, ब्लॉक, ब्लॉक मुंह पे. यू आर नॉट सपोज टू एंटरटेन एनी बी एस. इधर नहीं कर सकते हो कनेक्शन, एंड ऐसा बॉस है या कुछ ऐसा यार नहीं कर सकते हैं, देन मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज. से इट ऑन फेस कि अगली बार इसे ऐसा होगा तो मैं नहीं झेलूँगी, और एल्स नहीं है बंदा काम का या बंदी काम की, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, मुँह पे कीजिए ब्लॉग. और अब मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ. मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया है. एक लास्ट थिंग मैं बोलूँगी, मैंने लास्ट शॉर्ट्स डाला था, मेरे 920 सब्सक्राइबर्स थे, अब वो 950 समथिंग है. मुझे 1K करने हैं 2026 से पहले. ये मेरा एक छोटा सा गोल है. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल. Thank you so much for watching, and I love you guys. Merry Christmas and Happy New Year. Bye bye.